They were a group of 3 guys. We were tracking for 4 or 5 months. The moment I turned back, there was one militant behind me, and he fired a complete AK magazine of 30 rounds on me. लगभग 1 फीट से मेरे पर गोली चली। अपने ब्रदर्स को अपने साथ, जिसके साथ अपने पिछली रात को खाना खाया है, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप ऑपरेशन में जाते हो, कॉन्टैक्ट में ही डजंट कम बैक एंड ही इज मार्टियर्ड और ही इज किल्ड और मार्टियर्ड। इट इज़ लाइक कि तुम्हारा शरीर का कोई हिस्सा कट गया। आपके क्लोजेस्ट बडी को गोली लगी है, एंड 1 महीना पहले वो शादी करके आया है। दैट वुमन हु इज वेटिंग फॉर हिम इन हिज हाउस, ही इज नो मोर। I am Colonel Shivendra Pratap Singh Kanwar. I have commanded 7 para special forces, and thereafter, after putting in around 20 years of service, I have now entrepreneur, and I've started my own company. Coming to my background, I am from a clan of warriors. I am a 4th generation officer who happens to be in the army not by chance but by choice. I served around for 20 and a half years in the army. So my great grandfather served in the British Army, and my father was also in the Indian Army, and he served in 14 J&K rifles. I am from 7 Para SF, as I told you, and I commanded this battalion. Not commissioned into it, but later on went, and after around 5 years of service, I went into 7 Para SF and commanded it. My story, as far as my background goes, I am a Army public school product from Ambala Cant, and I did my schooling from there, and thereafter I was in SD College for my graduation. ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी जो कार्रवाई की वो फौज ज्वाइन करने की थी। जब मैंने आर्मी को ज्वाइन करने की अपनी ड्रीम देखा था, तो आई ऑलवेज वांटेड टू ज्वाइन द पैराशूट रेजिमेंट एंड द स्पेशल फोर्सेस। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि ऑपरेशनली आई वांटेड टू गेट दैट एक्सपोजर। सो ऑपरेशनल एक्सपोजर वाज द ओनली थिंग आई वांटेड। जैसे मैंने बोला, मेरे फादर इन्फेंटेरियन थे। माय सिस्टर्स एंड माय ब्रदर इन लॉज आर आल्सो इन द आर्मी। One is from special forces, other is from Kumaon regiment. So in our family there are only infantarians. There is no other arm or services which is there in our family. So infantry runs in the blood. But I always wanted to join the special forces. Coming on to my early life in the academy, I was there in OTA in 2001. I joined, and thereafter in 2002 I was commissioned into 2 Para SF. Again, setbacks when it comes. My first probation I could not clear after 90 days. And I went back to my parent unit in 8 Marathas. Thereafter, जब मैंने वो कार्रवाई की, उसके बाद मैंने दोबारा वॉलंटियर किया, तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में अपनी प्रोबेशन क्लियर की। Thereafter, I served in 2 Para SF for around 2.5 years, and subsequently there were some issues within the team, and I left and went back to my parent unit. थर्ड प्रोबेशन जब मेरे को मैंने राष्ट्रीय राइफल्स में था, मैं अपने पहले टेन्योर में मैंने 2 बारी राष्ट्रीय राइफल्स भी काटी है, तो 17 RR वाज द यूनिट। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने व्हाट आई डिड वाज आई अगेन वॉलंटियर्ड फॉर द थर्ड टाइम इन 7 Para SF, एंड देयर आफ्टर आई स्टेड इन 7 Para SF टिल द टाइम आई क्लियर्ड इट। सो आप देखेंगे कि स्पेशल फोर्सेज में भी आने के लिए मुझे उतनी ही सेटबैक्स और फेलियर्स का सामना करना पड़ा जितना कि मुझे फौज में आने के लिए करना था। I have not seen any officer who has done 3 probations. Yes, I have seen an officer who has done 3 probations, but all 3 probations were not cleared by that guy. So मेरे केस में मैंने 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए हैं प्रोबेशन के, और 1 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है। एंड out of my 20 years, I think so 12-13 years have been in Valley. I have not gone, I've never served in the Northeast, and पूरी मेरी लाइफ जो है वो J&K में मेजॉरिटी ऑफ माय ऑपरेशनल एक्सपोजर इज ओवर देयर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरा प्राइमरी एम स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने का था, वो था ऑपरेशंस लॉन्च करने का और क्वालिटी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस करने का। कन्वेंशनल वॉर तो कभी मैंने नहीं देखी, बिकॉज हमारे टाइम में हुई नहीं, बट काउंटलेस काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस किए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कपल ऑफ ऑपरेशंस विच स्टैंड आउट, जिसमें लगता है कि आई कुड हैव लॉस्ट माई लाइफ, वो हैं इंस्टेंसेस जिसमें वैसा काम किया है। एक ऑपरेशन है वैली का, जिसमें वी वर ट्रैकिंग अ ग्रुप ऑफ 3 मिलिटेंट्स फॉर पास्ट 6 months, एंड हमारे को इनपुट गैदर करने में, बिकॉज जहाँ पर हम लोग डिप्लॉयड थे
उस एरिया में उस टाइम पे मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं होता, मैं 2006 5 6 7 की बात कर रहा हूँ। एंड देयर वाज नो मोबाइल कम्युनिकेशन एट दैट टाइम, जहाँ पर हम हिली टेरेन थी समवेयर इन पीर पंजाल। तो हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन कम थे, तो व्हाट वी आर डिपेंडेंट ऑन, व्हाट वी वर डिपेंडेंट ऑन मोर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस रादर देन एनीथिंग एल्स। तो हमारे पास सोर्स का खबर थी कि देवर ग्रुप ऑफ 3 गाइज वी वर ट्रैकिंग फॉर 4 5 मंथ्स। फाइनली एक दिन हमें दोपहर को खबर मिली कि दे आर 3 गाइज, द सेम 3 गाइज विच वर ट्रैकिंग अबाउट, दे आर अवेयर, दे वर इन अ ढोक इनसाइड one of the higher reaches in the village. So we had to launch that operation during daytime only. Self and group of 6 हमने एक स्क्वाड लिया और उसके बाद हम लोग निकले उसमें। और 2 स्क्वाड्स थे, एक हमने लोकल आरआर यूनिट की मदद से वी हैड प्लेस्ड स्टॉप्स हायर अप ऑलरेडी बिकॉज वी न्यू कि ये खबर फ्रैक्टिफाई होगी थोड़े दिनों में। तो 3-4 महीने की वेट के बाद हम लोग गए उस ऑपरेशन में। एंड टारगेट हाउस पे पहुंचने के बाद सेल्फ, मैं और मेरा बडी अंदर सर्च कर रहे थे। जब तो हमने देखा कि वी सर्च द हाउस, इट वाज अ डबल स्टोरी ढोक, वहाँ पर ढोक बोलते हैं उसको। सो बिकॉज इट वाज अ विलेज एरिया, तो ज़्यादा एलाबोरेट बड़ा घर नहीं था। आफ्टर डूइंग द सर्च आई हैपन टू बी जस्ट जहाँ से वो लोग कैटल को ऊपर से चारा फेंक देते हैं, उस वाले एरियाज में मैं सर्च कर रहा था। तो उसके ऊपर एक सैक पड़ा हुआ था, बोरी पड़ी हुई थी। So I with my weapon I tried to put my weapon inside and checked कि whether इसके नीचे कुछ है कि नहीं। The moment I turned back, there was one militant behind me and he fired a complete AK magazine of 30 rounds only. लगभग 1 फीट से मेरे पर गोली चली होगी, मुझे आज तक नहीं मालूम है कि वो गोलियां कैसे बच गई। एंड आई जम्प्ड आउटसाइड द विंडो, आई ऑल्सो फायर्ड बैक। मैंने फायर किया पर मेरा डायरेक्शन, बिकॉज वो मेरे पीछे था और मैंने को हल्का सा आधा ही दिखाई दिया था, तो जब मैंने फायर बैक किया तो मेरी गोलियां इस दिशा में गई होंगी, लेकिन उसने पीछे से फायर करके, यहाँ पर ही विंडो थी तो मैं उससे नीचे जंप मार दी। एंड ही लॉब्ड 2 ग्रेनेड्स। वो स्प्लिंटर मेरे टांग पे लगे और मेरे बडी के भी लगे। एंड लगभग 4 बजे की बात होगी, तो हम लोग उसमें नीचे गए, बट सरप्राइजिंगली वो गोलियां कभी लगी नहीं। सो वंस वी वर डाउन, वी हमने कम से कम 8 से 9 फीट का फॉल लिया होगा। और फिर वो टेरेन ऐसा था कि घर के आगे जो आंगन होता है उसको ऐसे करके नीचे जा रहा था और नीचे फिर नाला बह रहा था। तो हम लोग उस पर गए और वहाँ से फिर हमने उसको एंगेज करना शुरू किया। पहले 2-3 मिनट तो यानी 15-20 सेकेंड आपको कॉन्शियसनेस नहीं आती। जैसे ही हम लोग नीचे गिरे उसने अपने 2 ग्रेनेड लॉब्स किए, जिसके स्प्लिंटर मेरी लेफ्ट टांग पे लगे थे। बट जब नीचे आए तो बिकॉज हमारे वेपन्स थे, तो हमने उसको एंगेज करना शुरू कर दिया। एंड देन वी कुड स्टॉप दोज गाइज इनसाइड। देवर 2 गाइज इनसाइड, वन ट्राई टू रन आउट, तो उसको हमने उधर ही एलिमिनेट कर दिया। पर दूसरा जो बंदा था वो ही हेल्ड आउट फॉर द नाइट। इन द मीन टाइम वी डिडंट लेट हिम कम आउट एंड हमने अपनी री इन्फोर्समेंट्स बुला ली थी। इन द मॉर्निंग वी शॉट दैट गाय ऑल्सो। सो दिस वॉज वन ऑफ द एनकाउंटर्स। माई बडी वॉज इवैक्यूएटेड एट द नाइट, in the night only, because of his injuries were more severe. I remained there with the splinters in my leg for the whole night. So ये नवंबर का महीना होगा, तो काफ़ी ठंड थी उस टाइम पे। तो पूरी रात मेरे उस पे टांग पे स्प्लिंटर्स थे और आई रिमेन्ड देयर फॉर द होल नाइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट फॉर दिस 10 सेकेंड ऑपरेशन वी हैड वर्कड फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने का टाइम लगा एक सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट लेने के लिए। उसमें भी हमारे वी कुडंट हैव, यानी हम अपने बडी को मैं बचा नहीं सकता था। उसको उसको मेरे को भी स्प्लिंटर लगे, उसको भी स्प्लिंटर लगे, ओनली बिकॉज क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी। इट वॉज नॉट अ टोटली क्लीन ऑपरेशन, वी सफर्ड इंजरीज बट वी वर एबल टू न्यूट्रलाइज दोज 2 टेररिस्ट। जो हमें 3 की खबर थी वहाँ पर 2 थे। तो इट वॉज अ एक्शनेबल इंटेलिजेंस जिसके लिए हमने काम किया था। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट operations I would say which stands out. Otherwise there have been many firefights in 2002-3 when we were deployed, in which there were times. There is one incident which I would like to tell you is about, we had laid an ambush in proper Shupiyan town. That was way back in 2002, and बिल्कुल तब उस टाइम पे the militancy was very high and I was a lieutenant at with around maybe 7-8 months of service. So जब हम लोग उस ऑपरेशन के लिए गए तो वहाँ पर टेरेन ऐसी और वो जगह बिल्टअप एरिया था, तो हम उसको ऐसे डिक्टेट कर रहे थे। तो इट्स अ ह्यूमरस इंसिडेंट कि आप लाइफ में हमेशा स्ट्रेस ही नहीं लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस। यू मस्ट हैव अ, यानी मज़े भी, ऑपरेशंस में मज़े भी बहुत आते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर, क्योंकि हम लोग एसएफ में थे और हमारे स्क्वाड्स छोटे होते हैं, हम लोग कम बंदों के साथ ऑपरेट करते हैं,
अनलाइक द रेगुलर आरआर बटालियन विच हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो हमारे पास 6-7 बंदों से ही हमें वो छोटी सा एरिया कवर करना पड़ता है। बट येस, जहाँ पर हम लोग ऑपरेट करते हैं वहाँ पर जनरली इंट होती है कि इंटेलिजेंस होता है कि यहाँ पर मूवमेंट होगा, एंड वी आर जनरली एट अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी इज हैपनिंग। वी डोंट गो टू अ प्लेस लाइक अ नॉर्मल आरआर यूनिट जहाँ पर नहीं भी है लेकिन वो अपना रोल और टास्क कहीं से कर रहे हैं। ये बेनिफिट है एसएफ में आने का कि आपको, आप तंग आ जाओगे लेकिन आपको ऑपरेशन से कभी तंगी नहीं मिलेगी। आपको जितना आपका आप अपनी भड़ास निकालना चाहते हो ऑपरेशंस पे और मिलिटेंट मारने पे, तो स्पेशल फोर्सेस में आ जाइए। आपको तनख्वाह मारने की भी मिलेगी, आपको गवर्नमेंट पैसे देगी मारने के, आपको इतनी अच्छी नौकरी हो। सो दूसरा वो इंसिडेंट था, तो हम वहाँ पर हमने एम्बुश लगाया। तो व्हाट हैपेंड वाज कि जो क्लेमोर माइन होती है जिससे एक एरिया कवर होता है, वो बेसिकली उसमें से पेलेट्स निकलते हैं, एंड इट्स अ वेरी पोटेंट वेपन। जब आप हर तरफ से हथियार से और ऑब्जर्वेशन से और अपने यानी क्योंकि छोटी टुकड़ी है, छोटी पार्टी है, उसमें आप हर जगह तो बंदे बैठा नहीं सकते। टू कवर द एरिया यू एम्प्लॉय क्लेमोर माइंस। तो any special forces any across the world, lot of claymore mines are carried just basically to cover the approaches and areas। तो मैंने और मेरे बडी ने लगा दिया वहाँ पर उस पर, और फिर हम आकर बैठ गए। तो जो मेरा साथ दूसरा मेरा स्क्वाड कमांडर था, वो उसका मुझे लगभग सुबह 5 बजे का टाइम होगा, 5 साढ़े 5 बजे का, जब आज़ान हो जाती है, सर्दी का मौसम था। तो उसका मुझे कॉल आया कि एक छोटा सा डॉग और उसका पपी वहाँ पर आए और उन्होंने वो क्लेमोर माइन को छेड़ना शुरू कर दिया। नाउ क्लेमर माइन का जो फेस होता है उसका एक पीछे लिखा होता है फेस टुवर्ड्स एनिमी, वो इट हैज़ टू बी टुवर्ड्स दैट साइड ओनली। अब वो क्योंकि हम उसको गार्ड नहीं पाए थे, वो ऐसी पोजीशन, हमने उसको ऊपर से लटकाया हुआ था थ्रू छोटी सी हमारी लाइन बेडिंग या रोप जिसको आप कह सकते हो। तो उसने आकर उसको उसको खुशबू, उसके मे बी एक्सप्लोसिव की खुशबू आई, उसको चीज़ अलग सी लगी, तो वो उसके साथ खेलने लग पड़ा। तो उसने, मेरे स्क्वाड कमांडर ने बताया कि इसने साहब इसको घुमा दिया इसका मुंह आपकी तरफ। तो बेसिकली व्हाट दैट डॉग डिड आफ्टर प्लेइंग विद इट, इट टर्न द फेस ऑफ द क्लेमोर माइन टुवर्ड्स मी। तो अगर मैं उसको उसको इनिशिएट करता तो वो हम ही ब्लास्ट में, बट बिकॉज वो नाइट विजन से देख सकता था, इट वॉज नॉट वेरी फार ऑफ। सो दैट इज हाउ, तो we couldn't have done anything whether militants come or don't come. So I lifted the ambush and that day we went back, and this is how these operations happen कि एक dog भी आकर, these are unforeseen circumstances, यानी कि आप, you don't plan for them। there is one more thing that we had an input of 3 guys coming, and मैं और मेरा बडी एक क्लिफ के ऊपर, लेज के ऊपर बैठे हुए थे। नीचे हमको 3 की खबर थी, तो एक बंदा आया पहले, उसने फर्स्ट मिलिटेंट केम, बट वी वर वेटिंग फॉर ऑल 3। ही केम, सैट एंड ही वेंट बैक। तो माय बडी आस्क्ड कि शुड वी एंगेज एंड न्यूट्रलाइज इट। मैंने बोला दूसरे को आने दे, तीनों को इकट्ठे एंगेज करेंगे। वो 3 कभी आए ही नहीं, तो वो मिलिटेंट ही निकल गए। सो दीज थिंग्स हैपन एज अ व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दीज आर इंटरेस्टिंग इवेंट्स, बट ऑब्वियसली आई डिडंट रिपोर्ट द मैटर टू आवर कमांडिंग ऑफिसर बिकॉज ही वुड हैव, उसने बोला कि तुम सारे एक मिलिटेंट भी नहीं मार कर आए, तुम ऐसे ही घूम फिर के आ गए वहाँ से। तो हमने कभी बताया नहीं, बट देन आई एम टेलिंग यू कि दीज थिंग्स हैपन इन कॉम्बैट। So these are few operations. There are countless operations which happen. But one thing which I want to tell you is combat is not very glamorous. When you see your own brethren, अपने brothers को आप अपने साथ, जिसके साथ आपने पिछली रात को खाना खाया है और नेक्स्ट मॉर्निंग आप ऑपरेशन में जाते हो, ही हैज़ प्रिपेयर्ड द दाल में तड़का लगाया है, आप उसके साथ ऑपरेशन में जाते हो और कॉन्टैक्ट में ही डजंट कम बैक एंड ही इज मार्टियर्ड और ही इज किल्ड और मार्टियर्ड। इट इज़ लाइक कि तुम्हारा शरीर का कोई हिस्सा कट गया। इट इज़ नॉट वेरी ग्लैमरस। एंड आप माइंडसेट देखो कि आपका सुबह ऑपरेशन हुआ है इन विच आपके क्लोजेस्ट बडी को गोली लगी है, एंड 1 महीना पहले वो शादी करके आया है। दैट वुमन हु इज वेटिंग फॉर हिम इन हिज हाउस, ही इज नो मोर। आप वापस आते हो, उसकी बॉडी विद फुल मिलिट्री ऑनर्स इज सेंट टू हिज नेटिव प्लेस। आपने वो सुबह ऑपरेशन किया है, सुबह आपका बडी की डेथ हुई, दोपहर को आपको फिर खबर आती है एंड अगेन यू हैव टू मूव आउट। दैट इज द माइंडसेट आई एम टॉकिंग अबाउट। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स the armed forces leadership and the special forces leadership from rest of the leadership. You cannot get it anywhere. आप सिविल में लीडर बन सकते हो, यू कैन बी अ कॉर्पोरेट हॉन्चो, यू कैन बी एनीवेयर, बट दिस काइंड ऑफ की सुबह तुमने सेटबैक देखा, रात को उसके साथ खाना खाया, सुबह तुम ऑपरेशन पे गए, उसको गोली लगी, he dies, he is a martyr, and in the afternoon again you are out trying to hunt guys who have eliminated that guy. And this mindset, this kind of devotion
दिस काइंड ऑफ माइंडसेट ऑफ परफॉर्मिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा. एंड स्पेशल फोर्सेज इज फिल्ड विद दिस. एवरी स्पेशल ऑपरेटिव, यू आस्क हिम कि why he has joined the maroon beret, he will say it is only for operation. Why he wears that maroon beret, why he has joined the parachute regiment, why he is in the special forces, उसका एक ही मकसद है, वो है आपका operations, operations और operations करना. If he is there, he is not there for allowance, he is not there for fame, he is not there for anything else. He just wants quality operations, and that is what separates him from the rest of the army. That is what the mindset comes in. Ki death, adversities, own people getting killed, it doesn't matter to him. He has to go on a job because he knows when the next militant comes, he will not be, यानी कि अगर वो उसको militant को, हमारा एम है उसको उस जगह पे खत्म करना जहां पर वो अंदर आकर हमारे बंदों को ना मारे पहले. First aim is that the person next to me should not be shot by the militant, and thereafter innocent civilians who are there in Delhi, Bombay, in hinterland of India, अगर हम उसको उधर एंगेज करके खत्म नहीं करेंगे तो ही विल कम बैक इनसाइड द कंट्री एंड हिट दोज पीपल हु आर नॉट ट्रेन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. इट इज आवर जॉब टू किल द मिलिटेंट्स एंड एलिमिनेट देम. व्हेन आई से किल एंड एलिमिनेट, इट इज एलिमिनेशन. इसमें कोई डर नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने मिलिटेंट को क्यों मारना है. मिलिटेंट को मारने का सिंपल सा तरीका है टू जस्ट एलिमिनेट हिम. Just eliminate the threat. There is no other. Because अगर वो अंदर घुस गया, then he is a threat to rest of the people. We are getting paid to protect those people who cannot protect themselves. So we cannot fail. So that is the mindset with gender. This question also comes ki, why do you kill? Why do you need to kill? This is the reason of killing. दूसरा question which lot of people and especially the young generation asks is about the mindset of a special forces operative. Mindset is simple. To be a special forces operative, you have to breathe special operations, you have to eat, sleep, do everything to be in special operatives. Special operative and a special forces operator, or a tier 1 operator as we term it in today's world, those are those guys who will do anything to achieve success. Mission accomplishment is number 1 for them. It doesn't matter how they do it. Obviously, the means sometimes have to be legal and ethical, but war, if the adversary is not following ethics, you are not supposed to follow it. ऐसा होता नहीं है. लाइफ में जो कहते हैं कि आपको कोई चीज अचीव करनी है, देयर आर वेज ऑफ अचीविंग इट. The ethical part remains always. Obviously, in a counter-terrorist operation, there is no intention of a special forces operative to hurt the civilians. No collateral to happen. But then that is combat. Sometimes it happens. Not diverting from the point, I will tell you what special forces operatives are made. First of all, you need to understand, I have been a special forces operative for 18 years. I don't have muscles. I don't have huge bodies. First of all, get away from it. Yeah, Navy SEALs, SEAL Team 6, Delta Force, those guys are quite heavy because they are the kind of people who are into heavy weight trainings and all. They do it because उनके पास equipment profiling ऐसा है कि वो 40 किलोमीटर ना चले तो उनको हेप्टर ड्रॉप कर सकते हैं. बट मैं आपको इंडियन आर्मी की बात बता रहा हूँ. दैट इज वाई इंडियन आर्मी हैज वेरी, यू विल फाइंड बिल्कुल नॉर्मल से लोग होंगे. कोई नॉट अ वेरी हंक काइंड ऑफ अ गाय कि आपको लगेगा कि ये स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव है. व्हाट यू सी इन बॉलीवुड मूवीज, ही इज नॉट लाइक. ही इज अ नॉर्मल इंडिविजुअल विद अ एक्स्ट्रॉर्डनरी डिजायर टू सक्सीड. आप यूनिट्स में भी जाएंगे, कोई ज़्यादा आपको पैराफर्नेलिया, लांसर्स, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लिखी होंगी. नॉर्मल सी यूनिट होगी, थोड़ा बहुत घास उगा होगा, यानी कि इट विल नॉट बी दैट मॉडरेटली क्लीन्ड, आई वुड से. बट आप सुबह 5 बजे या 4 बजे उधर चले जाओगे तो आपको 500 के 500 लोग भागते और दौड़ते और मेहनत करते नजर आ रहे होंगे. एवरीबडी फ्रॉम द टॉप मैन टू द लास्ट पैराट्रूपर विल बी इन द पीटी फील्ड वर्किंग इट आउट. 1-1.5 घंटा अपने फिजिकल क्राफ्ट पे काम कर रहा होगा. That is what special forces is. Secondly, special forces don't give up that easily. The mindset is कि they will do anything for mission accomplishment. जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको फेलियर्स मिलेंगे. अगर आपको लगता है कि आप एक पैरा एसएफ की प्रोबेशन करोगे कि यू विल हैव अ हंकी डोरी टाइम, आराम से घूम फिर कर आ गए, कोई दर्द नहीं हुई, कोई शिन में दर्द नहीं हो रहा, स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं हो रहे, यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस. स्ट्रेस फ्रैक्चर भी होंगे, आपको ब्रूफेन की गोली लेकर उसको
खाकर, और वेदर यू पुट अ इंजेक्शन और आप गोली लो, आपको वो अपनी प्रोबेशन क्लियर करनी ही पड़ेगी, कोई उसमें दो राय नहीं है। फैमिली लाइफ विल बी डाउन, बिल्कुल टोटल डाउन जिसको मैं कहता हूँ। यू विल नॉट बी सीइंग योर close ones, your wife, your children grow. You will be deployed at all time, at all point of times. So the glamour quotient, मरून बेरे को मैं कॉलेज में अपनी पिल्लों के नीचे रखकर सोता था। आई वॉज सो पैशनेट अबाउट ज्वाइनिंग। माई ब्रदर इन लॉ इज अ स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर, ही इज अ मेजर जनरल इन द आर्मी, स्टिल सर्विंग। उन्होंने मेरे को पहले ही मरून बेरे दे दी थी, तो मैं उसको अपने पिल्लो, पूरी अपनी सर्विस में मैंने, मेरे को नहीं लगता 50 बारी से ज़्यादा वो मरून बेरे पहनी होगी। बिकॉज आप ऑपरेशन में रहते हो, वहाँ पर मरून बेरे होती नहीं है। यू आर इन सम बैटल फटीग्स विच आर नॉट कॉम्बैट ड्रेस होगी, कहीं कार्गोज पहन के घूम रहा होगा, कोई शूज़ आपके ट्रैकिंग शूज़ होंगे जो आपको सो अगर आप उन चीज़ों के लिए, उस ग्लैमर के लिए यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, तो लेट मी टेल यू देयर इज नॉट मच ग्लैमर एज ब्रॉट आउट अर्लियर। कॉम्बैट इज डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैमर, कोई ग्लैमर नहीं है कॉम्बैट में। अपने बंदे को मरते देखना, अपने सामने वाले को मरते देखना, देयर इज नो वो, यानी कि उसमें कोई खास बात नहीं है कि आप बोलो कि मेरे को ठीक है, वो आपका काम है, आप करोगे उसको, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं कि हेप्टर्स उड़े, एक जगह पे लैंड किए और आपने सीधा अंदर घुसे, रूम इंटरवेंशन की, 4 मिलिटेंट मारे। उस स्पेशल फोर्सेस में वो सब करने के लिए जब स्थिति आती है, उससे पहले लोग कम से कम 100 ऑपरेशंस लॉन्च कर चुके होते हैं। वो 101वां ऑपरेशन होता है जिसमें वो ऐसे अंदर घुसते हैं, एंड इट इज़ ऑल वॉक। कितनी ऑपरेशन ऐसे होते हैं, कितने टाइम्स ऐसे होते हैं जब आप बर्फ़ में, धूप में, जंगल में चल रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती। और ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम में मिल जाएगी, सेकेंड, थर्ड, 50, 100वीं बार में आपको सक्सेस मिलेगी, तो वो दैट ग्लैमर गोज आउट ऑफ इट। दैट इज़ द माइंड सेट ऑफ एन ऑपरेटिव। दूसरा माइंड सेट है कि जो कमराडरी है, जो ब्रदरहुड है, जो आपके क्लोज बंदे हैं, यू कैन डाई एंड लिव फॉर देम। यानी जो आपका क्लोज ग्रुप है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई नई चीज़ है। टीम स्पिरिट, मोराल बिल्डिंग, बिकॉज वो लोग आपके साथ ऐसी जगहों पे रहे हैं जहाँ पर आपके ओन किथन किन, यानी आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपकी फैमिली भी नहीं आपके साथ रही, उन्होंने आपके लिए गोली खाई है, तो वो दे आर मोर देन फैमिली टू यू। दीज काइंड ऑफ थिंग्स मेक स्पेशल फोर्सेज डिफरेंट। लास्टली, एवरी वन इज अ वॉलंटियर। आप आर्मी में आए हो, वॉलंटियर हो, आपने स्पेशल फोर्सेज वॉलंटियर किया है, तो आप भी वॉलंटियर हो। सो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि इस ऑपरेशन में जाना है, इसमें हार्डशिप्स हैं, मेरे को 40 केजी लेकर आज पूरी रात चढ़ना है। अगर आप एक बंदा बोलोगे तो वहाँ पर पूरी टीम की टीम ही वो सब काम करने को तैयार है, बिकॉज उन्होंने वॉलंटियर किया है। एंड इन माई ओपिनियन देर इज़ नथिंग मोर स्ट्रॉगर देन द हार्ट ऑफ अ वॉलंटियर। जिस चीज़ ने उसके लिए वॉलंटियर किया है, जो अपने दिल से उस चीज़ को चाहता है, वो कभी भी उसको बुरा नहीं लगेगा। देयर आर टाइम्स कि आप अपने कजन्स की वेडिंग पे नहीं होगे, देयर आर टाइम्स आप अपनी वेडिंग पे पहुंच जाओ, वही बहुत बड़ी गनीमत है। यही लोग बोलते हैं कि चलो तुम अपनी शादी अटेंड कर लेना। देयर इज अ सेइंग कि भाई तूने अपनी शादी तो अटेंड की है ना, लास्ट दिन भी पहुंच गए, सुबह शाम को शादी है, सुबह दोपहर तक भी पहुंचा दिया आपको, तो यू शुड थैंक योर स्टार्स। दैट इज वॉट लाइफ इज, एंड यू शुड टेक इट। देयर विल बी नो फोन्स, देयर विल बी टाइम्स व्हेन आई डोंट नो, पीपल आस्क मी कि गर्लफ्रेंड कंसेप्ट, गर्लफ्रेंड तो मेरी तो पहले ही भाग गई थी मेरे ख्याल से अराउंड फर्स्ट फर्स्ट 3-4 मंथ्स में, क्योंकि देर इज नो कम्युनिकेशन, कोई बात ही नहीं हो रही है, यू आर डिप्लॉयड, देर इज नो टाइम ऑफ कमिंग बैक टू पी स्टेशन, देर इज नो लीव का चक्कर ऐसा। सो दैट काइंड ऑफ लाइफ, वो माइंड सेट डेवलप करने में, इट इज नॉट अ एसी एनवायरमेंट, इट इज नॉट, देर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच नीड्स टू बी डन, देर इज लॉट ऑफ कमिटमेंट यू हैव टू पुट इन टू इट डज नॉट हैपन। एंड जो ये चीज़ें आपके अंदर इम्बेड कर देती है स्पेशल फोर्सेज, वो आपकी लाइफ से जल्दी जाएंगी नहीं। आज भी 20-25 किलोमीटर भागता हूँ। आई एम 45 years of age. What my routine was 25 years back, 20 years back, it still remains the same. So it doesn't go out that easily. What I want to tell people is that have a goal, join the special forces, just don't think about the perks and privileges of it. Do your job. You have come there to do something extraordinary, and it will be done by only ordinary looking men. You will not find great bodybuilders कुछ, क्योंकि आप ऑपरेशन में हो, यू विल कैरी मोर एम्यूनेशन। आप प्रोटीन शेक, वो सब रखने की जगह नहीं है आपके पास। आप वो वाली बॉडी नहीं है। अगर आप 40 केजी लेकर, इफ़ यू कैनॉट वॉक 40 किलोमीटर्स एट नाइट इन फॉर लगातार हर रात 40-50 किलोमीटर माउंटेन्स में 16,000 फीट पे, 12-14 हज़ार पे, देन देर इज नो पॉइंट, बिकॉज एंड देर इज नो रेस्ट।
दिन में कहीं सो लिए थोड़े से जंगल में, फिर आप रात को चल पड़े, या मूवमेंट हो रही है, ये हो रही है, एंड योर मेंटल फैकल्टीज हैव टू वर्क. सो दिस काइंड ऑफ लाइफ अगर आपको पसंद है, you like to, I would say, blow shit upwards, so that is the place, then you should join special forces. Leave everything out of it. There will be only hard times, but the job satisfaction, if you are looking for that, don't look for allowance, don't look for salary, don't look for comforts. वो मिलेंगी. Obviously you are getting more allowance than the normal, but don't look for it. You had not joined it. अगर आपको पैसा ही कमाना था तो you should come to corporate, you should do maybe MBA engineers, be a IIT graduate. बट अगर देशभक्ति करनी है और दिल से करनी है, और आप चाहते हो कि आप every day you are seeing a different world, a different kind of people, different kind of mindset, you are traveling the world, best of equipment with you, best of operational exposure with you, then come to special forces. There is no other place where you will get this kind of life. Just don't see the personal part of it, just don't see the benefits. These are the benefits, because जो operational exposure टेम्पो, जो ऑपरेशनल टेम्पो आप देखोगे, वो नॉर्मल आर्मी कभी ड्रीम भी नहीं करती. यू कैन नॉट ड्रीम इट. सो this was my journey of 20.5 years in the great Indian Army, and even better special forces, that is parachute regiment. After joining army, a person like me cannot do much of sit in the office and do the job, so I have a company of my own in which I am starting to train, and I provide people for close protection. I have done a course in London in executive protection, and I'm based out of Gurgaon only, and I've been to UK and Europe. I've served over there. I mean to say, I've worked over there, and now I've started my own company. So it is of close and executive protection. It is still a unorganized market in India as compared to the West, which is much more organized. अगर आपको close protection या आपको executive protection में जाना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. यू हैव टू डू अ कोर्स. इंडिया में इट इज़ नॉट लाइक दो सफारी सूट में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स टाइप, वो बिल्कुल वैसा नहीं. पीपल आर क्वालिफाइड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब. सो मेरी वो कंपनी है, मैं उसके बाद अब एंटरप्रेन्योर हूँ. ज़्यादा सक्सेस तो मैं नहीं कहूँगा मुझे मिली है, वो लाइफ में कभी मुझे पहली बार में मिलती ही नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है. बट व्हेन आई गेट, मेरे को इतनी मिलती है कि मेरे को संभालना मुश्किल हो जाता है. सो दिस इज़ माई लाइफ एज अ एंटरप्रेन्योर. आई एम एन्जॉइंग इट. आई एन्जॉयड माई टाइम इन द स्पेशल फोर्सेज. आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ. जो चीज़ें मैं फौज में नहीं कर पाया, मैं टैटू बनाना चाहता था, फौज में मुझे बनाने ही नहीं देते थे, तो मैंने टैटूज बनाए खूब. लंदन में भी बनाए, इंडिया में भी बनाए. आई वांटेड टू पियर्स माई ईयर. I couldn't have done it in what do you call army. So after quitting these things, so these are just the privileges. And a person like me who's a soloist, who likes to work all alone, this is the best life I'm leading. So all the best to you guys. Have a great life. Set a aim. Eat, sleep, drink that aim, and you will be the you will be best. You will be best, and you will achieve it.